Hello everyone, this is Suvendra Das, your physics mentor, and welcome to our lecture series of our chapter electric charges and fields. And this is our session number 9. In this session, basically we will discuss electric dipole and how to find electric field intensity due to dipole at a point on axial line and equatorial line. I will try my best to finish this type of things in this lecture. And in session number 8, basically in session number 8, we have discussed the superposition principle related to electric field intensity and how to solve the and how to approach the numerical of different levels based upon the superposition principle of electric field intensity. So without any delay, let's start our session number 9. Okay. So our today's topic is electric dipole. Remember, what is electric dipole? If I will draw the diagram, पहले ये diagram को observe करो सब लोग. First, all of you observe this diagram. These are two charges, equal in magnitude and opposite in nature. Let us think, this is your minus q charge and this one is our plus q charge. And ये consider करने के बाद, their center to center separation. तो center to center separation. ये कितना है? Let us think, this is 2a. तो डायग्राम पे जो भी सेटअप दिखाई दे रहा है तुमको, this is termed as electric dipole. So what is electric dipole? It consists of two equal and opposite charges separated by a small distance from each other. This distance is very small. And यहाँ पे मैं consider कर सकता हूँ this point O is called midpoint of dipole. तो midpoint of dipole to minus q charge का distance कितना होगा? A ही होगा. And O से लेकर plus q का distance भी A. And don't think that there is no restriction of 2a. You can consider it as a also. इसको a लेने से ये क्या हो जाएगा? a by 2 and a by 2. That's the thing. तो 2a लेने से a होगा. So इसीलिए थोड़ा easy होगा for the calculation. So now what we have to write? Here we have to write electric dipole consists of two equal and opposite charges separated by a small distance from each other. Separated by a small distance from each other. This is about our definition part of electric dipole. So as per our figure, O is called midpoint of dipole, midpoint of electric dipole, and the 2a में लिखा हूँ 2a, it is called dipole length. The separation between two charges of electric dipole. It is the separation between two electric charges of electric dipole. And one more thing you remember, when 2a is very small को हम लोग tends to 0 भी लिख सकते हैं. So when 2a is tends to 0, that means dipole length tends to 0, then electric dipole is called ideal electric dipole. Then electric dipole is called ideal electric dipole. तो ये था तुम्हारा introductory concept regarding our electric dipole. I think this is very clear to all of you. Next we will consider dipole length. का जो मैथमेटिकल और क्वांटिटेटिव पार्ट, ये था उसका क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल का. So basically now we will discuss what is dipole length. Denoted by the letter p vector. इसको देखा जाए तो it measures the strength of electric dipole.
इसका क्वालिटेटिव मीनिंग क्या है? इन क्वालिटेटिवली तो मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, क्वालिटेटिवली इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ electric dipole. It measures the strength of electric dipole. And one more thing you remember, quantitatively उसका वैल्यू क्या होगा? क्वांटिटेटिवली dipole moment is equal to magnitude of either charge of electric dipole, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा? इनटू डाइपोल लेंथ। तो क्वांटिटेटिवली क्या लिखा चाहिए हमको? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल लेंथ। तो इसी हिसाब से डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज होगा Q, डाइपोल लेंथ हम लोग माने थे 2a, तो Q इंटू 2a दैट इज द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन और फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, तो डेफिनेशन पार्ट में हम लोग को क्या लिखना चाहिए? It is defined as the product of magnitude of either charge of electric dipole and dipole length or separation between two charges of electric dipole. So which implies thus P is equal to Q into 2a, and remember it is a vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी होने से उसका भी एक डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन क्या है उसका? तो डायरेक्शन from negative charge. Always remember this point, from negative charge to positive charge along the line joining centers of two charges of dipole. आई थिंक देखो कितना इजी हो गया, आसान हो गया। तो इन वेक्टर फॉर्म इफ यू वांट टू राइट डाइपोल मोमेंट तो क्या होगा? P वेक्टर इक्वल टू चार्ज स्केलर क्वांटिटी 2 तो एक नंबर 2a वेक्टर, यह है उसका वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग पढ़े थे, क्या एग्जाम्पल क्या लिख पाएंगे हम लोग? एग्जाम्पल में ये लिख पाओगे HCl। ओके, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। तो उसी हिसाब से दिस इज अबाउट योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो बेसिक आइडिया हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है एंड डाइपोल मोमेंट क्या है। तो यहाँ पे हम लोग जो डायग्राम किए थे ना, देखो जो डायग्राम किए थे हम लोग, तो माइनस से लेकर प्लस, इसी द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? पी क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो डायरेक्शन को हम लोग कैप में रिप्रेजेंट करते हैं, पी कैप और पी हैट। तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, देखो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल को कंसीडर करो। सपोज यहाँ पे एक चार्ज दे रखा है एग्जांपल, एंड उसका यूनिट देखो, यूनिट एंड डायमेंशन छूट गया है, यूनिट। तो पी का फॉर्मूला क्या होगा? P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। तो Q का ऐसा यूनिट क्या है? इन SI चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, डी तो डाइपोल लेंथ, सो दिस इज मीटर, कूलम मीटर, एंड स्टार्ट कूलम इनटू सेंटीमीटर क्या होगा? वो होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इसी हिसाब से उसका डायमेंशन क्या होगा? देखो डायमेंशन क्या होगा? तो P डायमेंशन इज इक्वल टू Q डायमेंशन इंटू 2a डायमेंशन। Q इक्वल टू IT,
तो ये होगा तुम्हारा A1 T1 एंड 2A का क्या होगा L1। तो फाइनली वी कैन राइट इट एज M0 L1 T1 A1। देखो कितना आसान हो गया डायमेंशन। तो हाँ हम लोग क्या यहाँ पे थे, एक न्यूमेरिकल हम लोग एक एग्जाम्पल पे कंसिडर कर रहा हूँ। सपोज मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे दिस वन इज वन एक्सिस एंड इसको मैं मान रहा हूँ y एक्सिस। तो नामकरण होगा उसका लेट इट इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। एंड यहाँ पे दो चार्ज अवेलेबल है, देखो so now see this is your 0 0, this is your 2 0 कोऑर्डिनेट एंड x एक्सिस में क्या है इन मीटर। रेडी। एंड ये जो चार्ज दिखाई दे रहा है तुमको, इसका चार्ज -2 कूलम और +2 कूलम ले जाओ, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका चार्ज कितना है -2 कूलम एंड -2 कूलम, कैपिटल से हो। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तुमको, फाइंड डाइपोल मोमेंट, फाइंड डाइपोल मोमेंट। ये तुम्हारा क्वेश्चन। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, P वेक्टर इक्वल टू Q वेक्टर, सॉरी Q इंटू 2A वेक्टर इंटू P कैप। तो मैग्नीट्यूड देखो पहले, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ डाइपोल 2 एंड जो 2A का मतलब क्या है, दोनों चार्ज का सेंटर टू सेंटर सेपरेशन क्या है 2 मीटर। तो 2 मीटर हो गया। तो दिस इज 4 कूलम इंटू मीटर, 4 कूलम इंटू मीटर। लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन को हमको पता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो माइनस से लेकर प्लस, ये देखो ये है तुम्हारा पी क्या, पी क्या का डायरेक्शन क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो माइनस आई क्या। तो डायरेक्शन क्या होगा एलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, एलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। Thus we can say P vector equal to 4 coulomb meter into minus I cap, 4 coulomb meter into minus I cap. I think this example is very clear to all of you. तो इसी हिसाब से डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट को हम लोग स्टडी करना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग जो भी थियोरिटिकल पोर्शन था ना इसके रिगार्डिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेट्स कम टू अनदर न्यूमेरिकल पार्ट। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इफ डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच डाइपोल इज P। तो यहाँ पे -q डाइपोल एंड +q, -q एंड +q को मिलाकर जो भी डाइपोल क्रिएट होगा का डाइपोल मोमेंट कितना दे रहा है P दे रखा है। ओके ओके, दैट मीन्स हम लोग ये कंसिडर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ हमारा P का आंसर क्या होगा Q इंटू L, QL। डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच डाइपोल इज P। तो यहाँ पे देखो Q इंटू ये Q चार्ज डिस्टेंस क्या दे रखा है L दे रखा है। सो यहाँ पे मान लो P इज इक्वल टू Q इंटू L मान लो, उसी हिसाब से P फॉर्मेट हम लोग लिख पाएंगे, नहीं तो लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो P इक्वल टू Q इंटू L, L क्या है दोनों इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड, जो चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर, जो चार्ज अवेलेबल है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर सेपरेशन, एंड Q क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ डाइपोल। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो पहला क्वेश्चन पे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो ये एक्चुअली हमारा पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रिक क्या अप्लाई करना चाहिए हमको, जस्ट सी यहाँ पे जो -2q में लिखा हूँ ना, इसको मैं मान सकता हूँ -q, कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं। तो इसी हिसाब से ये मैं -q एंड +q ये एक डाइपोल क्रिएट कर रहे हैं, नहीं ऑब्वियसली दे आर फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज योर P वेक्टर।
माइनस क्यू प्लस क्यू, ये भी एक डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज योर पी वेक्टर। वेरी गुड। एंड देखो तीनों साइड क्या दे रखा है, एल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंगल कितना है 60 डिग्री। तो देखो ये जो डाइपोल उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, P इक्वल टू Q इंटू एल, इसका भी क्या होगा P इक्वल टू Q इंटू एल, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री। तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा, डाइपोल मोमेंट, तो P नेट इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे हो गया डायग्राम तुम्हारा, देखो इसका भी मैग्नीट्यूड P, इसका भी मैग्नीट्यूड P, ये एंगल दे रहा है 60 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, P नेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 रूट ओवर, तो ये कितना हो गया 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इंटू cos 61/2 होल रूट ओवर, कितना हुआ 3p स्क्वायर, दैट मीन्स √3p, एंड p क्या है इसमें, q इंटू एल, q इंटू, ये है तुम्हारा आंसर। ओके, तो ये जो -2q दे रखा था उसको स्प्लिट करने से ही हम लोग नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे हम लोग। देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है, तो हर एक क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करना चाहिए, तभी जाकर हमको डाइपोल मोमेंट दिखाई दे, उसको तुम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे जो -3q में लिखा हूं, इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, -q माइनस क्यू माइनस, हो गया -3q। वेरी गुड। यहाँ पे देखो ये -q ये +q फॉर्म कर रहे हैं डाइपोल, -q +q, ये भी यहाँ पे भी एक डाइपोल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे जो -q एंड यहाँ पे +q, तो ये इस डायरेक्शन पे एक डाइपोल क्रिएट होता है। तो जज करना चाहिए डाइपोल लेंथ कितना है ईच एंड एवरी केस में, तो बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसको। पहले देखो इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो कितना सारा दिखाई दे रहा है, देखो हमारा एक डाइपोल मोमेंट P1 वेक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नीचे क्या दिखा रहा है P2 वेक्टर, एंड यहाँ पे लिखा दे रहा है हमको P3 वेक्टर। तो नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1 वेक्टर बच्चों, P1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलो, Q इंटू एल, दैट इज P कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज Q इंटू डिस्टेंस क्या है इसमें L, तो Q इंटू एल, इसको P मान लो, क्योंकि हम लोग कंसिडर किए थे Q इंटू एल को हम लोग P मानेंगे। अच्छा देखो P1 वेक्टर और P2 वेक्टर परपेंडिकुलर पे है ना, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट, उन रिजल्टेंट का नाम मैं दे रहा हूँ P12, तो ये डायरेक्शन किसका डायरेक्शन होगा, P12 वेक्टर। तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होने से मैग्नीट्यूड क्या होगा, उनका स्क्वायर का एडिशन ले जाओ, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर रूट ओवर, कितना हुआ P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर स्क्वायर, दैट मींस 2P स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज √2P। अच्छा यहाँ पे और एक चीज कैलकुलेट करना चाहिए हमको, P3 क्या है, P3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज कितना, -q का मैग्नीट्यूड q प्लस q का मैग्नीट्यूड q। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन दिस टू चार्जेस, ये साइड दे रखा है l, ये भी दे रखा है l, तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली इट विल बी √2l। आसान तरीका, पाइथागोरस कांसेप्ट, √2l। तो इसी हिसाब से लिखा जाए तो q इंटू कितना होगा √2, रेडी। तो q इंटू एल को हम लोग p मान रहे थे ना, सो √2p। So now P3 vector and P12 vector both are in same direction, तो कितना होगा P net, thus P net vector magnitude is equal to P12 vector magnitude plus P3 vector magnitude, because they are in same direction, ऐड हो जाएगा, तो √2p plus √2p, आंसर कितना होगा 2√2p। और p हम किसको मान रहे थे, q इंटू एल, तो 2√2 इंटू q इंटू एल, दिस इज योर फाइनल। हम लोग अज्यूम कर सकते हैं ना, सो q इंटू एल दैट इज p वी हैव अज्यूम्ड, ओके, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलो, इसमें भी देखो वही नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है। Here also you have to calculate
नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखो कितना डाइपोल गेट हो रहा है बेटा, माइनस से प्लस, ये होगा तुम्हारा एक P1 वेक्टर, माइनस से प्लस ये भी एक होगा P2 वेक्टर मान लो। वेरी गुड। तो लेंथ तो दे नहीं दिया है ना, तो P फॉर्मेट में ही लिखेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि अज्यूम कर लो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या है, सेम टू सेम। दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, P मान लो। तो P1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है P, P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सपोज P। Nothing is mentioned means we can assume that a separation between the two charges, okay, in case of both the electric dipoles, that is L1। अच्छा, देखो ये भी दो वेक्टर दिखाई दे रहा है एंड क्वेश्चन पे मेंशन हुआ है तुम्हारा, यहाँ पे जो एंगल, ये एंगल दे रखा है 60। तो दोनों वेक्टर दिखाई दे रहा है, P1 वेक्टर P2 वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर। लेकिन व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, इन ऑर्डर टू फाइंड द रिजल्टेंट वी हैव टू फाइंड द angle between two vector। so angle between two vector का concept क्या है, when the both vectors are joined tail to tail, the smaller angle between them is the angle between two vector। तो देखो इस डायरेक्शन पे हमारा क्या अवेलेबल है, P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, एंड यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमारा अवेलेबल क्या है, P1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है रे। एंड क्वेश्चन के हिसाब से ये जो एंगल इसी 60 डिग्री, समझ पा रहे हो, देखो क्या हो रहा है। Now P1 vector and P2 vector how they are connected, tail to tail connection हो गया। तो इन दोनों के बीच में स्मॉलर एंगल कौन सा है, 60 डिग्री इज नॉट द एंगल बिटवीन P1 एंड P2। ये एक एंगल होगा दोनों के बीच में, नहीं तो ये वाला एंगल होगा। तो स्मॉलर एंगल कंसीडर करना चाहिए हमको, ये वाला। तो ये टोटल 180, ये 60 होने से ये 120 होगा। वेरी गुड। सॉरी, नाउ वी कैन कैलकुलेट द P नेट वेक्टर। कितना होगा, तो 10 P नेट मैग्नीट्यूड कितना होगा बोलो, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 120 डिग्री स्क्वायर। तो ये आंसर होगा P स्क्वायर प्लस 2 इंटू P cos 120 कितना, -1/2। तो कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट, यानी कितना हुआ 2P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज P स्क्वायर का रूट ओवर इज P। दिस इज योर आंसर। तो 60 लेने जाने से क्या होगा, 60 ले जाने से गलत हो जाएगा, दैट्स द पॉइंट। तो देखो कितना आसान तरीके से हम लोग तीनों न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज अबाउट द डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट का जो कंटेंट था। अभी हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल में कितना चार्जेस अवेलेबल है, 2 चार्जेस। तो 2 चार्जेस मींस मोर देन 1 चार्ज हो गया। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही हम लोग अप्लाई करेंगे। जो भी कंटेंट था ना उसको हम लोग बस सही तरीके से अप्लाई करना चाहिए। तो नाउ आवर कंटेंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। ये हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2026-27 सीबीएसई एंड सीएचएसई बोर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। अच्छा, तो पहला चीज क्या है हमारा, एट ए पॉइंट ऑन, फास्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे। एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन, एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। अच्छा, ये एक्सियल लाइन क्या है एक्चुअली, ये एक्सियल लाइन क्या है, देखो इसको ले जाओ सेंटर टू सेंटर सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस ऑफ डाइपोल मान लो, एंड यहाँ पे कंसिडर करो ये तुम्हारा 2 चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। These are the 2 charges of electric dipole। I think it is clear। स्क्रीन को देख रहा हूँ सही तरीके से दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। परफेक्ट। देन मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल कहाँ पे होगा, दिस विल बी आवर मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल ओ। यहाँ पे ले जाओ माइनस क्यू, ये ले जाओ प्लस क्यू चार्ज, डाइपोल हो गया। तो 2a इज द डाइपोल लेंथ, तो इसको ले जाओ 2a, ये हो गया तुम्हारा डाइपोल लेंथ हो गया। देन ईच चार्ज से लेकर
वो पॉइंट का जो डिस्टेंस देखो कितना होगा, यही होगा। तो इसी हिसाब से लिखेंगे तो ये होगा तुम्हारा 2a, दिस इज a, ये दोनों जो दिखाई दे रहा है तुमको टू चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये दोनों का सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने से जो लाइन दिखाई देगा, इमेजिनरी लाइन दैट जॉइंस द सेंटर टू सेंटर centers of two charges of electric dipole is called axial line. So imaginary line that joins the centers of two charges of electric dipole is called axial line. And any point on the axial line on either side of the dipole is called axial line position. बीच में नहीं ले सकते हम लोग, क्यों? ये सेपरेशन वेरी वेरी लेस। तो मैं एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे, लेट इट बी पी पॉइंट, पॉइंट पी, इसको हम लोग मानेंगे एक्सियल लाइन पर और एक्सियल पोजीशन। ये कितने दूरी पर है? लेट द पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। लेट इट इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। वेरी गुड, हो गया। तो मुझे बोलो P से लेकर प्लस Q का डिस्टेंस कितना होगा एंड P से लेकर माइनस Q का डिस्टेंस कितना होगा? तो P से लेकर प्लस Q का डिस्टेंस कितना होगा? क्या आंसर क्या है? एंड P से लेकर माइनस Q का डिस्टेंस कितना होगा? इसका डिस्टेंस कितना होगा? क्यों? क्योंकि वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट P पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ये डिस्टेंस तो जरूरी है कि Q/r²। एंड R क्या था? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सोर्स। एंड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ये डिस्टेंस भी जरूरी है। कितना होगा? ये तो डिस्टेंस R मान रहे हैं हम लोग, इसको A लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? R-A। तो दिस विल बी R-A। एंड यहां से यहां तक कितना होगा? ये होगा तुम्हारा R, ये था तुम्हारा A, सो दिस विल बी R+। वेरी गुड। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसको देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, वेरी गुड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P कैप। वेरी गुड। तो जिस पॉइंट पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लेस ए Q नॉट चार्ज। Q नॉट क्या है तुम्हारा? हमारा डिटेक्टर टू प्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे Q नॉट प्लेस करने से मन ही मन बस प्लेस कर दो, Q नॉट प्लेस कर दो, ओके, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो क्या होगा? ये प्लस Q इसको क्या करेगा रे? प्लस Q विल रिपेल, बस प्लस Q रिपेल करने से क्या होगा? दिस विल बी योर E electric field intensity due to positive charge vector E plus vector। I think it is clear। एंड ये Q नॉट को माइनस Q क्या करेगा? अट्रैक्ट ही करेगा ना, बस। तो ये जो डायरेक्शन दिखाई दिया तुमको, ये वाला डायरेक्शन, इस ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज E माइनस वेक्टर। तो दोनों क्या है देखो, दोनों वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर एडिशन ले जाने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Rp हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायग्राम में जितना सारा पोर्शन में शो कर रहा हूं, बार बार वीडियो को ऑब्जर्व करो, तभी जाकर इजीली समझ पाओ। आई थिंक इट इज क्लियर। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं थोड़ा, व्हाट इज एक्सियल लाइन पोजीशन? एन इमेजिनरी लाइन, एन इमेजिनरी लाइन दैट जॉइंस centers of two charges of electric dipole is called axial line, and any point on axial line on either side of the dipole, on either side of dipole is called axial line position, called axial line position। फिगर पे क्या दिखाया जा रहा है? इन फिगर ओ, इसको मान लो A, ये मान लो पोजीशन A, ये मान लो पोजीशन OA इज इक्वल टू OB कितना? OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू कितना रे? A। O इज द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, बार बार उसको लिखना कुछ जरूरी नहीं। P क्या है? P हमारा पॉइंट एट व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। ओके, P क्या है? एक्सियल लाइन पोजीशन।
axial line position at a distance small r from midpoint of dipole at which electric field intensity is to be calculated. परफेक्ट। फिगर पे क्या दिखाया जा रहा है देखो, ओ ए एंड ओ बी, तो ए हो गया, देन व्हाट इज पी बी, आर माइनस, व्हाट इज ओ पी, आर, व्हाट इज पी ए, व्हाट इज आर प्लस ए। ये वगैरह वगैरह कंसेप्ट लिखने के बाद हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। कितना होगा, के इंटू सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड बाई ये जो डिस्टेंस दिखाया जा रहा है आर माइनस ए का स्क्वायर लेना चाहिए, एंड डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन, पी की आपका डायरेक्शन जिस डायरेक्शन पे है उसी डायरेक्शन पे तुम्हारा ई प्लस वेक्टर अवेलेबल। तो नाउ वी कैन राइट, सिंपली वी कैन मेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई डॉट एफ डॉट आई एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सिंपली इसको लिखो ई प्लस वेक्टर, कितना होगा, मैग्नीट्यूड क्या है उसका, के इंटू सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड बाई फिर सेपरेशन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, डायरेक्शन क्या है पी क्या, वेरी गुड। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, कितना होगा, ई माइनस वेक्टर इज इक्वल टू के इंटू माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। डायग्राम किया हो तुम लोग कॉपी में, उसको ऑब्जर्व करो, डायरेक्शन कहाँ पे था, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। तो नेट इंटेंसिटी क्या लिखना चाहिए हमको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू बोथ चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू बोथ चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आंसर क्या होगा, ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू ई प्लस वेक्टर प्लस ई माइनस वेक्टर। ई प्लस का आंसर क्या है, के क्यू बाई ये कूलम्स कांस्टेंट, के का वैल्यू 1/4πε। ओके, बार बार तुम लोग इसको लिख सकते हो, नहीं तो के भी लिख सकते हो। ओके, कोई ना कुछ टीचर लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं स्मॉल के को, तो वो बोल रहे हैं 1/4πε शुरू से ही लिख, उनको लिखना चाहे तो लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर क्या प्लस के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस पी का। तो क्या कॉमन लेना चाहिए हमको पता चल रहा है, के क्यू कॉमन हो गया एंड पी क्या कॉमन ले जाओगे तो क्या बचेगा, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो इसको हम लोग ना प्रोसीड करेंगे इजीली। देखो, तो कॉमन ले जाने के बाद विच इम्प्लाइज ई नेट वेक्टर कितना होगा, के क्यू कॉमन ले जाओ, अंदर क्या बचेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, देन पी क्या हम लोग कॉमन लिए थे, वेरी गुड। तो इसको कैलकुलेट करो, के इंटू क्यू, हाँ एलसीएम कितना होगा, r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू r प्लस ए का होल स्क्वायर, पर क्या बचेगा देखो r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट, देन इट इज पी क्या। उसी हिसाब से के क्यू न्यूमरेटर पे क्या है देखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला इज 4ab, तो 4 इंटू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय ये देखो r माइनस ए इंटू आर प्लस ए, दोनों का होल स्क्वायर लिखना चाहिए हमको, तो इसको लिखो r माइनस ए इंटू आर प्लस ए देन ब्रैकेट दोनों का होल स्क्वायर एंड पी क्या। जो न्यूमरेटर पे है ना, के को क्या लिख दिया मैंने, क्यू, हाँ 4r को मैं लिख रहा हूँ 2a इंटू 2r हो गया, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर पे क्या होगा, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी क्या, वेरी गुड। ये q इंटू 2a ये किसका वैल्यू, q इंटू 2a मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सो p लिखना है हमको, तो कितना होगा, k इंटू पी इंटू 2r डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी क्या। Finally, we can write it as 2 kpr by r square minus a square का whole square.
into p cap. So this is your value of E net vector. So net electric field intensity due to dipole at a point on the axial position कितना होगा along the direction of dipole moment. दिखाई दे रहा है. So E वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन के साथ बराबर. So we can say that इसके बाद और एक स्लाइड में हम लोग कंप्लीट करेंगे. देखो we can say नोट पॉइंट. देखो तो E axial vector is parallel to P vector. एंगल बिटवीन देम कितना 0 डिग्री. और एक केस में तुमको बोल रहा हूं कि जो एक्सियल पॉइंट में लिखा था ना, देखो एक्सियल पॉइंट डायग्राम पे ये पी पॉइंट को यहाँ पे भी मान सकते हैं हम लोग और बहुत दूर पे भी मान सकते हैं. जितना वो लाइन तो एक्सटेंड हो सकता है ना बहुत दूर तक, इनफाइनाइट तक. तो क्या होगा उसपे, यहाँ पे पी होने से ये होगा तुम्हारा आर, यहाँ पे होने से आर इंक्रीज हो गया, यहाँ पे होने से और इंक्रीज हो गया. ए से बहुत आगे जाकर कंसिडर करने से क्या होगा, आर का वैल्यू मच ग्रेटर देन ए हो जाएगा. तो उसी हिसाब से बहुत दूर पे पी पॉइंट कंसीडर करोगे एक्सियल पॉइंट को तो तुमको ऐसा लगेगा डाइपोल छोटा दिखा देगा, बहुत छोटा. उसको हम लोग मानेंगे शॉर्ट डाइपोल. ओके, तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत दूर पे होने से क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट क्या दिखा देगा, वो सिस्टम तुमको एक पॉइंट साइज दिखा देगा, छोटा दिखा देगा, शॉर्ट डाइपोल दिखा देगा इसमें. तो शॉर्ट डाइपोल का कंडीशन क्या है, आर इज मच ग्रेटर देन ए. इसको मैं समझा रहा था एक्चुअली. देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल आर इज मच ग्रेटर देन. तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर तो टेंस टू 0 हो जाएगा. एक छोटा सा क्वांटिटी का स्क्वायर क्या होगा 0.1 का स्क्वायर करो, देखो कितना और छोटा हो गया. 0.01 उसका स्क्वायर ले जाओ, बहुत छोटा हो जाएगा. तो कोई भी छोटा सा क्वांटिटी का स्क्वायर क्या होगा और बेहतरीन तरीके से बहुत छोटा हो जाएगा. तो फॉर्मूला क्या था हमारा, ई एक्सियल 2 के पी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी क्या. तो शॉर्ट डाइपोल के लिए स्क्वायर 0 मान लो, तो 2 के पी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर पी क्या. आंसर क्या होगा 2 के पी आर बाई आर टू द पावर 4 पी क्या. फाइनली हमको मिल गया 2 के पी बाई आर क्यू क्या. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन फॉर शॉर्ट डाइपोल 2 के पी बाई आर क्यू. एंड जो ग्राफ हो गया सो क्लियरली हमको फॉर शॉर्ट डाइपोल पता चल गया, ई एक्सियल फिजिकल मैग्नीट्यूड के हिसाब से कितना 2 के पी बाई आर. 10 ई एक्सियल प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यू. वेरी गुड, 1 बाई आर क्यू. तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एक ग्राफ ड्रॉ करो इसके बीच में 1 बाई आर क्यू वर्सेस कितना होगा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है. तो ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन. बस क्लियर हो गया. देखो देन तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, वेट करो, ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद ही नाउ व्हाट वी हैव टू डिस्कस, नाउ वी हैव टू डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन. इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे हम लोग एंड फॉर दैट पॉइंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट वी हैव टू फाइंड. देखो कितना बेहतरीन तरीके से, हाँ बच्चों ने मिस्टेक क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे वेक्टर साइन में दे रहा हूँ, देखो मैग्नीट्यूड लिखा हूँ डायरेक्शन, किसी भी पॉइंट पे चेक करो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो इसी हिसाब से बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे. तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब लिखने से लास्ट में हम लोग को पता चल जाएगा एक्चुअली उसका डायरेक्शन क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो विदाउट एनी डिले लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. केस 2 हम लोग कंसीडर करें एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन, एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन. एक बेहतरीन क्वेश्चन एक्चुअली, एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन.
फिर से वही बात करना है हमको, पहले डायग्राम को ऑब्जर्व करो कि दिस विल हेल्प अस ए लॉट। डायग्राम समझ पाओगे तो डेरिवेशन कुछ भी नहीं है। स्लो एंड स्टडी प्रोसेस पे तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। प्लीज पे योर अटेंशन। एंड मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल से देखो, इक्वेटोरियल लाइन क्या है? इट इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन। ये हमारा एक्सियल लाइन होगा एंड परपेंडिकुलर एंड पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन होगा, पासेस थ्रू मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल देखकर एक लाइन पास कर रहा है, सपोज ये वाला लाइन कंसीडर, यहाँ पे ये पॉइंट कंसीडर कर लो ठीक से। ये तुम्हारा ओ पॉइंट, दिस इज योर माइनस क्यू चार्ज एंड ये क्या है? प्लस क्यू। परफेक्ट। वन इज योर माइनस क्यू चार्ज, इसको माइनस क्यू चार्ज, ये क्या है? प्लस क्यू चार्ज। हो गया, वेरी गुड। एंड जो डिस्टेंस के बारे में जो बात करेंगे हम लोग, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है? 2a। ये डिस्टेंस 2a हो गया। देन ये डिस्टेंस 2a होने के बाद देन ओ पॉइंट से लेकर माइनस क्यू का चार्ज, माइनस क्यू डिस्टेंस कितना होगा? a। ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? a। आई थिंक देयर इज नो मोर कंफ्यूजन। तो 2a, दिस डिस्टेंस इज a और a। एंड मिड पॉइंट से लेकर ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, एनी लाइन दैट passes through the midpoint of dipole and perpendicular to axial line is called equatorial line, and any point on it on either side of dipole is called, any point on the equatorial line, that is called equatorial line position। yes, equatorial line position। और एक चीज देखो, ये जो equatorial line position में लिखा हूं ना, at a point on road side on position भी इसको मान सकते हैं, road side on position। क्लियर? देन क्या करना चाहिए इसमें? तो ये पॉइंट मान लो हमारा P पॉइंट। परफेक्ट। व्हिच इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। तो जिस पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बस Q नॉट को प्लेस करना चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन। ये Q नॉट को ये प्लस Q क्या करेगा? अभी फिल कर देगा। ये तो डिस्टेंस जरूरी है ना, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से सोर्स का डिस्टेंस। वो डिस्टेंस को इजीली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। डिस्टेंस अभी ऐसे इंडिकेट कर रहा हूं मैं, देखो ये एक डिस्टेंस एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P से लेकर माइनस Q का डिस्टेंस हो गया। ये डिस्टेंस का आंसर क्या होगा? ये तुम्हारा A, दिस इज R। इसका आंसर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल रूट ओवर। एंड ये डिस्टेंस भी क्या होगा? ये R, ये A, दिस विल बी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट ओवर, स्क्वायर रूट। वेरी गुड। एंड ये एंगल क्या होगा? देखो ये दोनों साइड इक्वल मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल होगा। इसको मान लो थीटा, इसको मान लो थीटा, जो ट्रायंगल पे। देन Q नॉट को प्लस Q क्या करेगा? अभी Q नॉट को प्लस Q रिपेल कर लेगा ना, सो दिस इज द डायरेक्शन, रिपेल कर रहा है। परफेक्ट। तो इसका वैल्यू क्या है? ये है तुम्हारा E प्लस वेक्टर, E प्लस वेक्टर। एंड E प्लस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? बोलो, E प्लस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। E प्लस वेक्टर, अच्छा थोड़ा लाइन में लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा ये माइनस Q या Q नॉट को क्या करेगा? अभी अट्रैक्ट करेगा ना, बस वेरी। ये होगा तुम्हारा E माइनस वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज। दिखाई दे रहा है सबको? तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे हम लोग कैसे? ये एंगल पता करने से भी चलेगा, देन कंपोनेंट पे स्प्लिट करने से भी चलेगा। मैं लिखूंगा, वेट करो। ओके, तो बस पहले नाउ वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन। एनी लाइन और इमेजिनरी लाइन, ऐसे ही लिखेंगे, इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन that passes through midpoint of dipole, midpoint of electric dipole and perpendicular to axial line, and perpendicular to axial line
is called equatorial line, is called equatorial line, and any point on it is called equatorial line position, equatorial line position। आई थिंक ये जो लैंग्वेज पोर्शन क्लियर हो गया। तो फिर से देखो ओपी कितना है, ओपी इज इक्वल टू आर, ओ ए इज इक्वल टू कितना, ओबी, ए बी तो मैं मेंशन नहीं किया हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, प्रीवियस डायग्राम पे ऐसा ही मैंने फिर कितना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, वेरी गुड। देन यहाँ पे देखो ये जो बी प्लस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी Q2 प्लस Q चार्ज, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूँ, E प्लस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फॉर्मूला क्या है, K इंटू सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय आर स्क्वायर, मीन्स सेपरेशन बिटवीन P पॉइंट एंड प्लस Q का जो सेपरेशन उसका होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर उसका होल स्क्वायर। आंसर क्या आ रहा है, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P due to माइनस Q चार्ज कितना होगा, E माइनस वेक्टर मैग्नीट्यूड, K इंटू माइनस Q का कितना मैग्नीट्यूड, दैट इज माइनस Q का मैग्नीट्यूड क्या है, Q, तो K Q बाय वही सेम सेपरेशन क्या था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट उसका होल स्क्वायर, सो K Q बाय आर स्क्वायर प्लस, अरे K Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। लाइन को लैंग्वेज को देखो ठीक से, एक्सप्रेशन पता चल गया। तो यहाँ पे पता चल रहा है E प्लस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जितना है, E माइनस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड सेम टू सेम, इसका मैग्नीट्यूड को मान लो x फ्लैट, ये भी कितना हो जाएगा x फ्लैट, तो इसी हिसाब से इसका मैग्नीट्यूड को मैं लिख रहा हूँ कितना x, इसका भी मैग्नीट्यूड को मैं लिख रहा हूँ x। तो जो कंपोनेंट में स्प्लिट करने से क्या होगा देखो अच्छे से, ये जो E प्लस का जो कंपोनेंट जो मिलेगा देखो कितना कंपोनेंट मिलेगा, दिस विल बी वन कंपोनेंट, ये हमारा एक कंपोनेंट होगा, एंड ये उसका दूसरा कंपोनेंट विल बी अनदर कंपोनेंट ऑफ E प्लस प्लस, तो मैग्नीट्यूड x। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे z फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, इंटरसेक्ट हो रहा है, दिस एंगल इज थीटा, मींस ये एंगल कितना होगा थीटा, परफेक्ट। तो ये एंगल थीटा हो गया। और एक चीज देखो, हमारा दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, ये तो इंटरसेक्ट हो रहा है, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा परफेक्ट। तो इसी हिसाब से ज्योमेट्री के हिसाब से एंगल तो मिल गया हमको, तो इसका मैग्नीट्यूड है x, तो एंगल अटैचिंग कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, सो दिस विल बी x cos थीटा एंड दिस इज योर x sin। सिमिलरली जो E माइनस वेक्टर, इसका भी वही कंपोनेंट मिलेगा हमको, दिस इज वन कंपोनेंट E माइनस का, दिस इज वन कंपोनेंट एंड दिस विल बी अनदर कंपोनेंट, नीचे होगा। कंपोनेंट स्प्लिटिंग क्लास 11 का कंसेप्ट याद नहीं तो फिर से रिपीट हो रहा है तो समझो। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है x, एंगल अटैचिंग कंपोनेंट cos कंपोनेंट, सो दिस विल बी x cos थीटा, दिस इज योर x sin थीटा। अभी हमारा डायग्राम पे E प्लस वेक्टर एंड E माइनस वेक्टर नहीं है, कंपोनेंट स्प्लिट होने के बाद वी हैव टू फोकस अपॉन दिस फोर कंपोनेंट्स। तो अलोंग y डायरेक्शन दिखाई दे रहा है तुमको, ऊपर क्या है x sin थीटा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, नीचे क्या है x sin थीटा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो मैं पूछूंगा व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग y डायरेक्शन, तुमको आंसर क्या देना चाहिए, 0, क्योंकि ऊपर जितना वैल्यू नीचे उतना वैल्यू। तो वी कैन राइट दस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग y डायरेक्शन नेट कितना आ रहा है, तो बचा है क्या है, ये दोनों वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, अच्छा इसमें और एक चीज देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट माइनस q से प्लस q, ये होगा तुम्हारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, परफेक्ट। p क्या, तो x cos थीटा देखो कौन सा डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट टू p क्या, तो पहले सुनो, पहले हमको क्या करना चाहिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ, तो मैं लिख रहा हूँ E नेट वेक्टर, आंसर क्या रहना चाहिए, E प्लस वेक्टर
प्लस ई माइनस वेक्टर। वेरी गुड। तो मुझे बोलो ई प्लस वेक्टर का दो कंपोनेंट क्या था? ई प्लस वेक्टर का दो ही कंपोनेंट, एक है तुम्हारा एक्स कॉस थीटा माइनस आई क्या, एक्स साइन थीटा प्लस जे क्या, ऐसे मान लो दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस वन इज योर एक्स। हो गया। नाउ वी कैन राइट इसका जो वैल्यू एक्स कॉस थीटा माइनस पी क्या, और माइनस आई क्या लिखो, जो भी माइनस आई क्या पहले लिखो, एक्स कॉस थीटा माइनस आई क्या प्लस एक्स साइन थीटा कितना प्लस जे क्या। हो गया। देन ई माइनस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ई माइनस को ऑब्जर्व करो, इसका एक कंपोनेंट एक्स cos थीटा माइनस आई क्या एक्स sin थीटा माइनस से क्या, बस एक्स cos थीटा माइनस आई क्या प्लस एक्स sin थीटा माइनस से क्या। तो ये दोनों देखो कैंसिल हो गए। यस, जे क्या कॉमन ले जाओ, एक्स sin थीटा माइनस एक्स sin थीटा 0, तो अलोंग वाई डायरेक्शन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे अभी, नाउ वी कैन राइट इट एज 2x cos थीटा इनटू माइनस आई। अरे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ही हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो माइनस आई कैप क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ना। देखो ये पी कैप हम लोग माइनस की का लिखेंगे, जो माइनस पी कैप होगा वही है हमारा माइनस आई कैप। वेरी गुड। तो नाउ वी कैन राइट इट एज अगेन 2x cos थीटा माइनस पी कैप एंड एक्स का वैल्यू पुट करो। एक्स का वैल्यू क्या था, k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा ही था। cos थीटा का वैल्यू क्या है, देखो डायग्राम, ये देखो x का वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। cos थीटा जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, वेरी गुड। cos थीटा कितना होगा, cos थीटा इज b बाई h, तो ये क्या है a, ये क्या है उसका लेंथ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर। तो नाउ इट विल बी a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर कितना 1/2 रूट ओवर इंटू माइनस पी क्या। तो सॉल्व करने से क्या होगा, यहाँ पे देखो q अवेलेबल है, यहाँ पे 2 है, q इंटू टू, इसको साइड में लिखो k इंटू क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर पे कितना हो रहा है पावर 1, यहाँ पे 1/2 ऐड होने से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 माइनस पी। परफेक्ट। q इंटू 2a को हम लोग क्या लिख पाएंगे p, which implies our E net vector is equal to k into p divided by r square plus a square पावर कितना 3/2 माइनस p। हो गया। तो कितना आसान तरीके से which मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक ही एक्सप्रेशन पे हमारा निकल रहा है। तो नोट पॉइंट पे क्या पता चला हमको, नाउ वी कैन से ई इक्वेटोरियल और ई इक्वेटोरियल ऐसे लिखो, ई इक्वेटोरियल वेक्टर, ई नेट मींस इक्वेटोरियल पोजीशन का नेट इंटेंसिटी ना, इक्वल टू माइनस पी वेक्टर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम 180 डिग्री। वेरी गुड। एंड फिर से हम लोग शॉर्ट डाइपोल का कंटेंट इसका अप्लाई करना चाहिए। तो फॉर शॉर्ट डाइपोल नेक्स्ट पॉइंट नोट पॉइंट पे, फॉर शॉर्ट डाइपोल आंसर क्या मिलेगा देखो, फॉर शॉर्ट डाइपोल r is much greater than a square tends to 0, 0 पुट करने से क्या मिलेगा, thus e इक्वेटोरियल वेक्टर इज इक्वल टू kp बाय r स्क्वायर पावर 3/2। आंसर क्या मिलेगा, ये भी सॉरी डायरेक्शन माइनस पी क्या, तो ये आंसर हो जाएगा 2 इंटू 3/2 3, kp बाय r क्यूब इंटू माइनस पी is E equatorial vector for short dipole। देखो now this is our final expression, this is our final expression actually, kp by r cube minus p cap short dipole के लिए, जनरल डाइपोल के लिए बस kp by r square minus plus s square power 3/2। क्लियर। तो दिस इज अबाउट, इसी तरीके से तुमको लिखना चाहिए। पहले वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर साइन दे रहे हो मींस हमारा LHS साइड में एक वेक्टर क्वांटिटी मींस राइट साइड में क्या होगा, वेक्टर ही क्वांटिटी होगा। वेक्टर के पास दो चीजें, एक मैग्नीट्यूड और अनदर इज डायरेक्शन। तो जितने बार मैं लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर दे रहा हूँ राइट साइड पे उसी हिसाब से
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों को प्रायोरिटी देना। यस, आई थिंक ये तो बहुत इजीली, बहुत आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख चुके हैं एक्चुअली। तो दिस इज अबाउट, ये 2 थीटा लेकर भी कर सकते हो। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट ओवर, उसमें भी वही सेम रिजल्ट निकलेगा। तो आई थिंक इट इज क्लियर, एंड यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है ई इक्वेटोरियल, फिर से देखो ई इक्वेटोरियल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब, वही सेम टाइप का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। वेरी गुड। तो Kp/r³ मींस शॉर्ट डाइपोल इक्वेटोरियल का शॉर्ट डाइपोल के लिए नेट इंटेंसिटी, एंड एक्सियल का जो नेट इंटेंसिटी शॉर्ट डाइपोल कितना मिला था 2 Kp/r³। वेरी गुड। तो मैं पूछ रहा हूँ इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल, इन केस ऑफ short dipole, in case of short dipole, if we will discuss that E axial by E equatorial कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 2 Kp/r³ डिवाइडेड बाय Kp/r³। आंसर क्या मिल रहा है 2:1। ओके, और E equatorial बाय E axial 1:2। इस हिसाब से फोकस करना चाहिए। कितना टाइम हुआ, ओके चलेगा। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू दिस कंटेंट, एंड आर क्या है पता होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, बी केयरफुल। आर क्या था, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। वेरी गुड। ये क्वेश्चन को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन स्क्रीन पे, ऑब्जर्व करो एंड ट्राई टू डू द आंसर। So find the ratio of electric field due to dipole at axial and equatorial point in the following case। axial point देखो, ये वाला पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये वाला ये है तुम्हारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड इक्वेटोरियल पोजीशन ये सपोज टी ले जाओ, टी पॉइंट। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट टी। तो सिंपली शॉर्ट डाइपोल का कंटेंट अप्लाई करो एट पी, E इज इक्वल टू कितना 2 Kp/r³। तो 2 के रेशियो पूछा है, हाँ, तो 2 Kp/r³ क्या है, r क्या है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल का जो डिस्टेंस कितना x दे रखा है x³, एंड एट t कितना होगा E का वैल्यू E एट p, E एट t। एक्सियल पॉइंट ये है तुम्हारा एक्सियल पॉइंट, हाँ कितना होगा Kp/r³, शॉर्ट डाइपोल में इक्वेटोरियल। अरे E एट p मींस व्हाट, E इक्वेटोरियल, बी केयरफुल, एंड ये क्या है E एक्सियल। परफेक्ट। कितना होगा, डिस्टेंस कितना है 2x, तो 2x का होल क्यूब। आंसर क्या मिला Kp/8x³। तो आंसर पूछा है तुमको E एक्सियल डिवाइडेड बाय E इक्वेटोरियल। 2 Kp/x³ 2 Kp/x³ divided by Kp/8x³ means 2 Kp/x³ into 8x³ by Kp। Kp कैंसिल हो गया, कितना रहा है 16। आंसर कितना हुआ 16:1, 16:1 हुआ तुम्हारा आंसर। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो वेट करो थोड़ा, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्या होगा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नो सेम क्वेश्चन, ई एक्सियल बाई इक्वेटोरियल कितना होगा बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, क्विक, विदाउट एनी डिले। डायरेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ई एक्सियल फॉर्मूला, ई एक्सियल इज 2 Kp/r³, यहाँ पे r का वैल्यू कितना रे x, 2 Kp/x³। वेरी गुड। ई इक्वेटोरियल कितना होगा Kp/r³ दैट इज Kp/x/√2 दे रखा है, x/√2 का होल क्यूब, Kp/x³/2√2। परफेक्ट। तो 2√2 Kp divided by x³ डन। 2√2 Kp
डिवाइड बाय एक्स क्यूब। सो ई एक्सियल बाय ई इक्वेटोरियल रेशियो कितना होगा 2kp बाई एक्स क्यूब, तो रिवर्स हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 2√2 kp। केपी केपी कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, 1/√2 होगा तुम्हारा आंसर, 1/√2 हो गया। देखो उसी हिसाब से प्रोसीड द न्यूमेरिकल एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट, कितना आसान हो गया देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का रेशियो फाइंड करेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन आर इक्वल। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन का आंसर क्या होगा बोलो, कितना 2kp, 2kp बाय डिस्टेंस कितना है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स क्यू, ई इक्वेटोरियल कितना होगा एज पर द फिगर kp बाय आर क्यू, आर का वैल्यू क्या है वाई क्यू। वेरी गुड। क्वेश्चन पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, E axial will be equal to E equatorial, which implies 2kp by RQ और XQ is equal to kp by YQ। kp kp तो कैंसिल हो गया, तो XQ by YQ कितना हुआ 2, और XQ by YQ 2 by 1 2, so X by Y का पावर होल Q इक्वल टू 2, तो बोथ साइड में पावर 1/3 लेने से क्या होगा X by Y पावर Q होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3, तो क्या मिला 3 into 1/3 1 हो गया, x by y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। दिस इज योर आंसर। तो आज के इस सेशन पे बेसिकली वी हैव कंप्लीटेड इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, हाउ टू फाइंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। बराबर, इसके हिसाब से बहुत आसान है दोनों चीज। ओके, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में गिरेगा वो कोई भी टीचर बोल नहीं पाएगा। क्लियर? तो दोनों को प्रायोरिटी देकर प्रैक्टिस करो, उसका क्वेश्चन भी और एक क्वेश्चन सेशन भी होगा इस चैप्टर खत्म होने के बाद, एमसीक्यू सीरीज एक में ले आऊंगा। एंड पार्ट 1 पे हम लोग एडवांस हिसाब से एक पार्ट 1 एमसीक्यू सॉरी पार्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अपलोड किया, उसको ऑब्जर्व करो। तो आज के सेशन में बहुत सारा टेक्निकल चीज हमारा स्ट्रांग हो गया। देखो कैसे हम लोगों को न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है या एज वेल एज थ्योरी को भी अप्रोच करना है। बेसिकली ये सेशन नंबर 9 बहुत अच्छा सेशन है। ओके, कमेंट बॉक्स में उसका रिव्यू तुम लोग पोस्ट कर सकते हो। तो इसी हिसाब से हमारे चैनल पे जुड़ते रहो। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट। नेक्स्ट अपडेट क्या हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअली इन आवर नेक्स्ट कंटेंट वी विल डिस्कस आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। वेरी गुड। एंड उसके रिलेटेड जो भी टॉप लेवल न्यूमेरिकल बेसिक से लेकर एडवांस तक दैट विल बी डिस्कस्ड। तो हैव पेशेंस। तो इसी हिसाब से आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।